Well, hello, namaskar. You're watching DD Sports. I'm Frank Rausen Pereira. This is Cricket Live. What an exciting day of cricket we witnessed on day one of the fourth test between India and England. 11 wickets fell on day one. We'll talk about that, and we'll also talk about what to look forward to in day two as the Indian batsmen take the field and try to surpass the 200-run score that England scored in the first innings. To talk about all of that and much more, I have with me on the program today former Indian cricketer and World Cup winner, Madan Lal. Thank you. Thank you. And also with us today, we have a cartoonist who will take us through the exciting moments of day one and also what to expect in day two as well. And we'll be joined by sports expert Jayant Lakheda as well to talk about the cricket match between India and England. So, Madan Lalji, let me start with you first. Yeah, sure. How would you look back at day one of the fourth test? Day one, I think India has done very well because they got England out for 205. And I think there will be a lot of problem for England today. Hopefully, if India bats well. But I think जो भी हुआ है, I think England has to blame themselves. क्योंकि देखिए, the wicket was good. They won the toss. उन्होंने रन नहीं बनाए इस विकेट पे, and they made the same mistake which they've been making for the last two test matches. And so there is a lot of there's a lot of कहते हैं ना कि उनकी जो प्लानिंग है जो उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, पर प्लानिंग बहुत ख़राब की है. Because like over planning वो कहते हैं ना इंग्लैंड के ज़्यादातर जो टीम्स होती हैं थ्योरी पे बड़ी चलती हैं. थ्योरी पे नहीं चलना चाहिए. आपको सिचुएशन के हिसाब से विकेट को देखते हुए all these things you see, then you select the team. And I think they made a big mistake on playing three bowlers in this heat. And three bowlers, Joe Root, ठीक है, last match because the wicket suited him, but I don't think they're not done the right thing to play three. तो काफी सारी tactical errors थे आप. Yeah, definitely. बैटिंग में भी उन्होंने जब बैटिंग की तब भी उन्होंने गलतियां की हैं, जब उन्होंने टीम सेलेक्ट की तब भी गलतियां की. एक ही चीज अच्छी हुई कल उनके लिए जो उन्होंने टॉस जीता. पर टॉस जीतना ये मतलब नहीं होता कि आप मैच जीत गए, बट एटलीस्ट फ्रेश विकेट पे आप रन तो बना सकते थे. जी, ये विकेट को कंप्लेन भी नहीं कर सकते. ये टिपिकल इंडियन विकेट है. चलिए मदन लाल जी, थोड़ा बैटिंग कार्ड देख लेते हैं. कल का जो स्कोर था इंग्लैंड का ये था. So you can see the highest scorer, of course, was Stokes, who scored 55. There was a partnership that was building in the middle order. We saw Pope, Stokes and Lawrence as well score a few runs. तो बैटिंग कार्ड पे अगर नजर डालते हैं तो in the middle order it seemed like they some consolidated a little bit and they did a little well, but we kept picking up wickets at regular intervals and we didn't let any big partnerships build. So that was a good job by the Indian bowlers. Definitely Indian bowler has done well. क्योंकि देखिए ये तीन जो bowlers हैं हमारे, इन्होंने बहुत बेहतरीन bowling की. दो तो जो spinners हैं they are the world class. They don't give you anything. You have to like कहते हैं ना कि you have to get the runs. तो ये bowling figures हैं स्क्रीन पे. तो देखिए 4 विकेट्स अक्षर पटेल ने लिए हैं, अश्विन ने 3, सिराज ने 2 विकेट लिए हैं फ्लैट बैटिंग विकेट पे. So he's put in a lot of work as well. Siraj. Yeah, definitely Siraj is a very good bowler. I'm glad that he has played. क्योंकि पता क्या है कि देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. उनको कंटिन्यूटी देना बड़ा ज़रूरी थी. और इस टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच में भी खेला वो, तो इस टेस्ट मैच में उन्होंने खिलाया. मेरे को बहुत खुशी हुई. बिकॉज क्या होता है कि उमेश का पता नहीं था, वो इंजर्ड था, वो वापसी आया था, उसके पीछे कोई क्रिकेट भी नहीं थी, कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं थे. तो ऐसे बॉलर को खिलाना बहुत, मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन था. क्योंकि जो रिदम में होता है ना बॉलर, वो आपको विकेट निकाल के दे सकता है. और फ्लैट विकेट हो, कैसी भी विकेट हो, आपको विकेट निकालने का ढंग आना चाहिए. कहाँ पे हमने गेंद को करना है, जहाँ पे हमें विकेट मिल सकती है. इस ऐसी विकेटों के ऊपर मूवमेंट नहीं ज़्यादा नहीं होते. नया गेंद आपने देखा होगा 5, 6, 7 ओवर मूव करेगा, उसके बाद रिवर्स स्विंग या नीचे रहेगा. आपको गेंद अगर आप ठीक लाइन पे कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस है आपके विकेट्स मिलने के. तो ऐसे ही सिराज ने किया. बाकी तो हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स, तो वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड टू गेट अवे फ्रॉम दिस पोजीशन. तो सिराज की बात हो रही है, तो चलिए सुनते हैं सिराज ने क्या बोला है. कल उन्होंने रिएक्ट किया था, तो लेट्स लिसन टू व्हाट मोहम्मद सिराज हैड टू से.
बाहर बाहर डाल के एक बॉल अंदर, तो वही मुझे मतलब जैसा बाहर जा रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद मैं जब फ्रेश ओवर का फर्स्ट बॉल मैं सोचा कि ये अंदर डालूंगा और ऊपर डालूंगा, तो वो जैसा मैं सोचा और वो सक्सेसफुल भी हुआ, तो वो तो मज़ा आया वो बॉल डाल। बस ऐसा कुछ नहीं था कि बस विराट भाई ने बोले कि जैसे रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे थे, बट उतना बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था, नॉर्मली स्विंग हो रहा था। तो बस हम लोग विराट भाई बोल रहे थे कि फास्ट बॉलर वहाँ से एक एंड से डालेंगे, जो भी 2-3 ओवर है बस एफर्ट डालेंगे वहाँ पर ही, फास्ट बॉलर एफर्ट से डालेंगे, विकेट मिली या नहीं मिली वो सेकेंडरी है, बस तुम लोग आके एफर्ट से बॉल डालेंगे। Well, that was Mohammad Siraj there talking about how much he's enjoying bowling. Madanlal ji, that is the most important thing, नो isn't it? बिकॉज Cricket में पता क्या मजा है आना चाहिए. हाँ मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप विकेट्स लेते हैं, वैसे मज़ा नहीं आ सकता। जी, लेट्स बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, that's true. बट इसका जो एटीट्यूड है, मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था इसके 2-3 महीने पहले, इसमें ना जब आप इसको बॉलिंग करते देखें, आप किसी का एटीट्यूड देखें, जब भागता है तब देखें, पता लग जाता है प्लेयर का कि जब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इस खिलाड़ी के मैं शुरू से मैं कह रहा था कि इसको खिलाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भागता है, जब गेंद करता है आप देखिए Effort. जोश है, Effort. इसमें है, पैशन है, दैट्स क्रिएट्स द थिंग, ये स्पोर्ट्स में चाहिए आपको, जब अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेसफुल होना है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पर इस लड़के में है। और And it's interesting, isn't it? He's talking about कि I work to the plan, 2 बॉल अंदर आए, फिर बाहर निकाल लिया मैंने. That's all good planning, isn't हाँ, it? दैट्स अ गुड प्लानिंग, ये आपको यू हैव टू डू इट। And implementation is also key. द मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, आपको हर चीज़ बता दी जाती है, तो इम्प्लीमेंट तो आपने करना है ना। जब आप अंदर जाते हैं तो वो दैट इज़ वेयर योर फोकस इज एंड यू डू इट, है ना। एंड पता लग जाता है भी हाँ ये खिलाड़ी को बाहर करना है। बाकी देखिए देयर इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं यहाँ पे, जी, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे और जो भी है, रोहित शर्मा वगैरह, तो वो भी आपको तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं बोलते, वो गाइड करते रहते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ टाइम कि जब आप बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो आपका अपना ब्रेन तो चल ही रहा है, बिल्कुल. पर यू नीड ए स्लाइटली एडवाइस, है नो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस, बट आई थिंक इज डूइंग वेल। आई होप ही कंटिन्यूज टू डू वेल, क्योंकि गेम तब स्टार्ट होती है, पहले 1 2 3 4 5 से 10 तक निकल जाते हैं, जब दुनिया को टीम्स को पता लग जाता है भी सिराज क्या करता है, तो फिर वो प्लान करते हैं। बिल्कुल, प्लान तो अभी भी बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल. बट देन दैट बिकम्स डिफिकल्ट, देन यू हैव टू मेक मोर एफर्ट। Absolutely, absolutely. He seems to have a very firm head on his shoulders for the time being and is doing very well. Let's hope that he continues to do well, and that's the wish really as far as all of us here are concerned. Let me go across to Jayant Lakheda as well, who's been patiently listening into the discussion thus far. You know, Jayant, let's talk about the Indian bowling lineup and how well the Indian bowlers have done. You know, right from the Australian series, we've seen R. Ashwin chipping in, doing his very best. He's continued through the series with England as well. And Akshar Patel has really been a revelation in the last couple of matches. फ्रैंक, जैसा आज की बात शुरू हुई, मदन जी ने जैसा बताया कि इंग्लैंड हैज डन लॉट ऑफ होमवर्क, बहुत सारी कागजी कार्रवाई वो करके आए हैं, बट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जैसे ही हम अपने यंग प्लेयर्स को देखते हैं, अगर हम बात करें जैसे आपने बताया अक्षर पटेल की ही, ऐसा लगता नहीं है कि इज अ डेब्यूटेंट प्लेयर, लगता है इज लाइक प्रीटी एक्सपीरियंस्ड, अपनी लोकल क्रिकेट में ही वो इतना सीख गए हैं कि इट्स नेक्स्ट लेवल इंटरनेशनल प्लेयर। और जिस तरीके से एक सेटल काम वे में इंडियन टीम के इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर हम वहीं पे देखें कि इंग्लैंड ने बहुत तरीके से बहुत बहुत स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली सोचा, चेंजेस करे, इंडियन टीम वहीं पे सीधा इम्प्लीमेंटेशंस में, रियल टाइम चेंजेस में, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस में इतनी ज्यादा आगे रही है। और ये सिर्फ ना ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ की बात नहीं कर रहा मैं, यंग प्लेयर्स जैसे कि अक्षर पटेल हैं, 4 विकेट्स और ऐड की इन्होंने, इतना जबरदस्त तरीके से प्लांटेड रहते हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, वो चीज देखने वाली है बहुत ज्यादा। और यही चीज शायद इंग्लैंड को भी सीखनी चाहिए इंडिया से कि जिस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन जी। हो रहा है, ना कि एक्सपीरियंस प्लेयर से, इतने यंग प्लेयर से इंडियन टीम के द्वारा, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लानिंग कि वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो गेम चेंजिंग है। Absolutely. Even And Jayant, जो you know, रूट के जाने के if बाद I could भी- just add here, you know, it also talks a lot about the leadership, doesn't it? Because, you know, these youngsters are being helped, are being, you know, coached well, are being led very well as well. That's why they can go ahead and do this. Exactly. Even if you say in the last match, Joe Root was playing the entire game. It was like just, you can say कि England versus Joe Root versus India, and Joe Root was trying to be everywhere in the match for England. But यहाँ पे आप अगर एक यंग प्लेयर को भी देखेंगे,
किस तरीके से मतलब वो टीम लीड कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डेब्यूटेंट प्लेयर है। ऐसा लगता है कि ही इज कम्पीटिंग विद जो रूट, किसी और तीसरे चौथे प्लेयर से कंपटीशन ही नहीं चल रहा। हर प्लेयर टॉप रैंक 1 के लिए ही कम्पीट कर रहा है इंडिया में। सो दैट इज रियली कॉम्पिटिटिव इन इंडिया। और ये चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और हर टीम को इंडिया से सीखनी चाहिए कि बस स्ट्रैटेजी, टैक्टिकल्स स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स ही नहीं, किस तरीके से रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन इंडियन टीम के द्वारा हो रहा है, वो दैट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग। एब्सोल्युटली। मदन जी, थर्ड टेस्ट के बाद काफी कुछ चर्चा हुआ पिच पे। You know, everyone was talking about the pitch, unplayable conditions. They talked about how it was, you know, difficult to play here, but no complaints on the fourth test. I mean, the pitch looks great. Pitch looks great, लेकिन wickets तो 10 गिरे हैं इंग्लैंड के। नहीं, पिच में तो जो पहली जो थर्ड टेस्ट की विकेट थी वो टर्निंग ट्रैक जरूर था। मैं नहीं कहूंगा कि टर्निंग ट्रैक नहीं था, लेकिन जब हम न्यूजीलैंड में खेलने जाते हैं तो कंडीशंस तो वैसे ही होती। लेट्स नॉट कंपेयर इट, नाउ वी टॉक अबाउट दिस थर्ड टेस्ट मैच। जो मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात खत्म नहीं की, क्योंकि विकेट टर्निंग था, डिफिकल्ट विकेट था, बट यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई मीन। एब्सोल्युटली, क्योंकि उस पे आपको खेलना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पिंक बॉल से गेंद ज़्यादा टर्न करता हो, बट कल वाली विकेट्स जो होती है वो बिल्कुल टिपिकल इंडियन विकेट्स, जहाँ पे आप मैच कर सकते थे। बट मैंने कहा ना कि जैसे कि उन्होंने सेम मिस्टेक्स किए हैं जो उन्होंने पहले करे। आई थिंक दे लैक ए स्किल ऑफ प्लेइंग स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। क्योंकि कल भी जो बैट्समैन के आउट हुए, जो गेंद अंदर आया है, कई बार एक दो गेंद अंदर आते हैं तो उससे भी आउट हुआ है, और उनका मेरे को लगता है कि वो कंफ्यूज हैं। अगर देखिए बैटिंग जब कर रहे हैं, या तो अटैक करने जा रहे हैं, अटैक करके अटैक में भी जो प्लानिंग नहीं है। अगर अटैक भी करना है तो आपको बॉल के ऊपर जाके मारना पड़ता है। हर बॉल को टर्निंग टाइप में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्टंप आउट हो जाए। जैसे आई थिंक लॉरेंस आउट हुआ है लास्ट में, स्टंप आउट हुआ है, उससे पहले क्रॉली आउट हुआ है। और जो रूट की बात अगर करें, आपको पता है इंडियन विकेट में गेंद नीचे रहता है, आप पीछे नहीं खेल सकते। हम जब खेलते थे, हम पहले ही डिसाइड कर लेते कि आगे खेलना है भाई, क्योंकि गेंद नीचे रह जाएगा तो आपका कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप पीछे खेलेंगे, वहाँ गेंद वहाँ पड़ा है, अगर यहाँ तक आप पीछे चले जाएंगे तो गेंद कुछ भी कर सकता है, नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी आ सकता है, बिल्कुल, स्विंग भी कर सकता है। फुटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वही एक प्रॉब्लम था जो हमने नहीं, इन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की है ना, बिकॉज यू नो लाइक आवर स्पिनर्स, यू नो लाइक वी टॉक अबाउट अक्षर पटेल एंड अश्विन। हवा ज्यादा अश्विन का चढ़ा लगा हुआ है, पर अक्षर पटेल के हैज अ मैक्रो लाइनर लेंथ, वहाँ गेंद टिप अप करता है जहाँ पे गेंद टर्न भी करता है और गेंद अंदर भी आता है, तो दैट्स व्हाई ही इज बिकमिंग मोर इफेक्टिव। बट अश्विन, उनके मन में जो प्ले कर रहा है वो अश्विन कर रहा है। तो मेंटल गेम अश्विन का है, विकेट्स अक्षर पटेल ले रहा है, बिकॉज़ ही इज एक्सपीरियंस ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट ही एंड अक्षर इज बिकम a clever. And the spin tandem is doing wonderfully well. In the meantime, talking about doing something well, Irfan ji seems to be doing something as well on his poster board. Irfan ji, जी ये बताइए। देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा कि 200 रन तक अगर पहुंच गई टीम तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम शायद आज भी 200 रन पूरा नहीं कर पाएगी, और जब वो 197 में देखा कि तक तो पहुंचा तो लगा था कि अब तो 10th विकेट चला ही जाएगा। तो उस पर बहुत लोगों को लगा कि अब थोड़ी जान आ गई टीम के अंदर, मतलब अब तो गेम देखा जा सकता है। अदरवाइज तो कल मैं सुन रहा था कि इंग्लिश कमेंटेटर जो थे, he was very happy when England crossed completed 200. There was a sense of joy and a उसी के ऊपर shriek. मैंने, हाँ, उसी के ऊपर मैंने ये कार्टून किया है कि कैप्टन इज सेइंग द टीम मेंबर्स के हम उनका स्वागत पहले करेंगे जिन्होंने हमें 200 रन तक पहुंचाया। तो ये 2 प्लेयर्स को वो वेलकम कर रहा है उसके अंदर। एंड सेकंड थिंग ये कि जो आपने देखा कि सिराज का और बेन स्टोक का कल जो टसल जो हुआ उसके ऊपर इसको लेकर के पिच के ऊपर बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं इंडिकेशन का, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कूड़ा नहीं फेंको। तो अब इस तरह के बोर्ड भी लगे रहेंगे, पिच पर गाली गलौज करना मना है। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन लगना शुरू होना चाहिए। मदन जी, स्लेजिंग वगैरह जो चलता रहा है क्रिकेट में, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। आई एंजॉय इट। थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बट हाँ, इस ओवर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, अंदर बहुत कुछ होता है, बट दैट आल्सो बिकम द सेंस ऑफ ह्यूमर। यू नो लाइक जब ये होते हैं ना स्लेजिंग, तो कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि टॉक हो जाते हैं, बार टॉक्स हो जाते हैं, कॉमेडी हो जाती है, तो ये तो फ्लेवर है जी। ऐसा नहीं है कि आज 2 टीमें चुप करके मैच खेली और चले गई, ऐसा थोड़ी होता है। स्पोर्ट्स है, इसमें एग्रेशन रहना चाहिए, बट ओवर नहीं होना चाहिए कभी भी।
and you have to behave yourself क्योंकि millions of people are watching you. So that is very important part. But ये नहीं समझो कि वो आप उनको ये भी मालूम है कि यहाँ माइक लगा दूर जाके बोलना है अगर आप तीन बार खेलते हो मिस होते हैं तो कोई ऐसा बॉलर होता है कि वो उसको जाके बोल देता अब टच भी तो कर दो तो ये चीजें चलती रहती हैं मजा आता है इसमें Absolutely. This is also an element of the sport, और होना ही चाहिए, and that's how we can take the sport forward interestingly and with a sense of companionship as well as competition too, and that's what we need to witness on the field. Jayant, if I can come to you, let's talk about day 2 now. We've focused quite a bit on day 1. India, of course, has lost that one wicket of opener Shubman Gill. Of course, that was a wicket that we lost early on. But since then, we've seen a steady partnership being built between Pujara and Sharma, of course. So, what can we expect going into day 2? Frank, India has got a really fine and stable batting lineup. So we have the top ranking batsmen in our teams, and it's going to because we are obviously dominating in the game and in the series as well. We have won the physical implementations in the game. We have won the mental game. Psychologically, England बहुत ज़्यादा pressure में है. So it's going to be extremely positive side for India, and I'm pretty sure that India is going to win this match as well because we are on a very you can say better side. We are not only better in the way of batting or bowling. We are on the better side of our psychological order as well. We are going to implement it pretty well. We got a really nice batting lineup. एंड एट दिस टाइम हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन पे भी हैं जो रूट मैच मतलब बैटिंग करने के बाद भी दे हैव नॉट प्लेड इट रियली वेल एंड यहाँ से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके वी आर गोइंग टू टेक इट टुवर्ड्स विन Absolutely. Chaliye. So since we are talking about the Indian batting lineup, let's look at the opening pair of Gill and Rohit Sharma and see how they have done in this. Okay, we'll look at the Indian openers first and look at how the Indian openers have fared really over the last few matches. Shubman Gill has played in 7 matches, scored 378 runs at an average of little over 34. He has scored 350s as well. Mayank Agarwal has been used in 14 matches, scored 1,052 runs. He's averaging about close to 46 and also scored 450s and 300s. KL Rahul, most experienced of the openers on this particular list, 36 matches, 2,006 runs, averaging 34.5. 11 50s and 500s, and then Prithvi Shaw has been used in 5 matches as well, where he has scored 339 runs at an average of 42.37, 1 century and 2 half centuries. We'll look at the opening pair that has been used in the England series. First test match, of course, Gill and Rohit as an opening pair scored 19 in the first innings and 25 in the second innings. The second test, not, and 42 in the second innings. And also, if you look at the third test, 33 runs were scored by both these openers in their opening partnership stand. And the second innings was, of course, that didn't happen. So that was that. And in the fourth test as well, we've seen that the opening pair has not done too well. But Madan ji, opening pair के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? काफी सारे openers try किए हैं हमने last 2 years में. अब we are going with Gill and Rohit Sharma. So how would you look at them as an opening pair? I see it's a right combination because why the Gill is very talented. That's whatever way I've seen him in Australia, the way he batted, the way he's shown the confidence. But sometimes you struggle. He's struggling, very honestly, Gill. But the only struggle, why he's struggling, he's making it technical flaws. Because he has to play a bit more on the status side. Because if you see that he got out in LBW doing this, So in our wickets, if you don't touch the ball, then you have a chance of getting LBW. And Jimmy Anderson is a very clever bowler. He knows how to get the batsman out. But he's talented. We don't have to worry about him. एक talented खिलाड़ी को थोड़े से chances अगर आप देते हैं तो एक चीज तैयार होती है आपके पास क्योंकि लंबे समय के लिए तो आपके बारे में मतलब आप क्या सोचते हैं शुभमन गिल को और चांसेस देने चाहिए नेक्स्ट सीरीज में भी देने चाहिए इनको चांसेस देने चाहिए इफ ही डजंट डू वेल देन ही कैन ऑलवेज कम बैक ऐसे क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि व्हाई नॉट अदर पीपल ये बात होती है और हम भी जब सेलेक्टेड होते थे हम भी सोचते थे क्यों नहीं बाकी उसको ट्राई किया बट जो टैलेंटेड होता है उसको
आपको पता ही है 4-5 चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, 10 चांस। एंड रोहित शर्मा इज ऑलवेज उसकी बात क्या करनी है। वनडे में तो बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, अभी टेस्ट में भी शुरू किया है वैसे ही नहीं खेलना। टेस्ट मैच में देखिए इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये ओपनिंग पे हुआ है, क्योंकि एक खिलाड़ी कई बार होता है कि जो वनडे में ओपन कर रहा है, 2020 में ओपन कर रहा है, आप टेस्ट मैच में उसको 5-6 पे अगर आप बैटिंग करा तो कई बार वो इतनी वेट नहीं कर सकता। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं फिर अंदर से सोच होती है नहीं मैं चलूं। ऐसे ही रिचर्ड के साथ हुआ था, विविन रिचर्ड के साथ हुआ, वो नंबर 6 पे बैटिंग होता। देन एक साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट केम, he said no, you send him number 3, he never looked back, he was one of the best batsmen in the world। तो ये कई बार ऐसी चीजें आपको ट्राई करनी पड़ती हैं, तो इसके साथ ऐसा ही हुआ है। अब इसको ओपन करा रहे हैं, ही इज गेटिंग रन्स एंड इज गिविंग गुड स्टार्ट, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको बहुत सारे मैच जिता सकता है। क्योंकि और थोड़ा सा अगर लाइक शुभमन गिल मैच्योरिटी दिखाएगा तो आप देखेंगे कि ये पेयर विल बी द बेस्ट पेयर है ना। और डे 2 में इंडियन बैट्समैन को कैसे अप्रोच करना है फर्स्ट सेशन को? देखिए फर्स्ट सेशन क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लास्ट जो एक हम 145 पे भी आउट होते थे, मेरे पिंक बॉल का ही हम आउट हो गए थे जी। पहले 2 घंटे का गेम बड़ा जरा थोड़ा क्रूशल रहेगा, क्योंकि इसमें अगर विकेट नहीं गिरे तो आप समझ लेना कि ये आज शाम तक काफ़ी लीड हो जाएगी। बट क्योंकि दैट 2 आवर्स फर्स्ट 2 आवर्स लंच सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विकेट अगर गिर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि इंडियन टीम माइट स्ट्रगल। So how do you believe they should approach the नॉर्मल game? गेम Should they be a little aggressive or do you believe that नो थोड़ा अग्रेसिव। defensive देखिए करके? टेस्ट मैच में अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पिच ऑफ द बॉल यू कीप ऑन प्लेइंग एंड स्टार्ट गेट्स रन। इट्स अब कल का गेम से आज का गेम में फ़र्क रहेगा, क्योंकि आपने आना है, आधा घंटा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा सेट होंगे रन अगर बनाने। इसलिए मैंने कहा कि 2 घंटे का गेम जो है ना वो थोड़ा सा क्रूशल रहेगा। Absolutely. इरफान जी चलिए आते हैं आपके पास दोबारा। तो आपने कुछ होटल के बारे में कुछ बनाए हैं, होटल बताइए। जैसे अहमदाबाद में ही हो गया था कि भाई 5 दिन का जो मैच है अब तो 2 दिन में होने लगेगा, तो होटल्स का फिर क्या होगा। तो होटल वालों की बड़ी चिंता होगी, तो एक होटल ने नोट पर लगा भी दिया है 5 दिन का एडवांस किराया देना होगा, मैच 2-3 दिन में भी खत्म हो जाता है तो बाकी दिन का रिफंड नहीं होगा। वैसे तो होटल बिजनेस वैसे भी कोरोना की वजह से डाउन है डाउन पड़ा काफी। हुआ है, हाँ। तो लोग लेवर है वो 2 दिन का ही कराते हैं, 3 दिन का। चलिए on that from that lighter moment let's move on to some serious talk about the match itself। मदन जी इंग्लैंड बॉलर्स के बारे में जरा बातचीत कर लेते हैं। They have I think they had a long day। अगर they don't get the wickets, 3 bowler is like international cricket में is very very difficult, so you get tired, the heat and everything, your fingers get tired, how long you can keep on। Jimmy Anderson कितना स्पेल करेगा 5-6 ओवर का, then you have to give him break। हाँ आप बीच में आप जो रूट को कह सकते हैं, अभी उसने लास्ट मैच में विकेट्स निकाले, पर ये विकेट लग है, ये टोटल अलग विकेट है, इसमें गेन टर्न कर रहा है बस स्लो टर्न कर रहा है। सो इंटरनेशनल टीम्स नेवर प्लेज विद द 3, क्योंकि बॉलर्स विंस यू द मैचेस। ट्रू डेफिनेटली, बिकॉज आई नो कि बैट्समैन रन तो बनाते हैं, पर विकेट जो 20 विकेट्स निकालने हैं उसके लिए 3 बॉलर मैं समझता हूँ कि काफ़ी शॉर्ट है, काफी मुश्किल भी होगा उनके लिए। हम अगर सेट हो गए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा, अगर विकेट मिलते जाए तो फिर इतनी थकावट भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। And Jayant, if I can come across to you as well, since we're talking about the English bowlers, whom should we watch out for on day 2 and the first session especially? I would say here, Frankie, we should not watch out for the England bowlers because Indian batsmen are going to dominate this match now. Psychologically, England team काफी ज़्यादा बुरी स्थिति में है and we're going to dominate the entire match। ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ही बड़ा नहीं मारेगा और they're going to like take away the entire game। Obviously, this is sport, कुछ भी हो सकता है एक हैट्रिक हो जाए मैच शुरू होते ही, लेकिन it's going to be dominated by the Indian batsmen। It's going to be a pretty long day for the bowling side for England, and that's all I want to say on it। लॉन्ग डे की जो बात हो रही है मदन जी, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर बैटिंग ऑर्डर इज आल्सो वेरी डीप। वॉशिंगटन सुंदर कमिंग इन एट 9, तो काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप भी है हमारी, तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर। Definitely, because they are all in form, they are all scored runs। Washington Sundar has scored around 80 odd runs when he played the first one, पहला टेस्ट मैच खेला था इंडिया में,
तो वो तो है ही है, बट ये है कि you need a partnership. Once you started the partnership, then it becomes very difficult for them, for the English bowlers. But definitely we have Virat Kohli. They're all capable. Ajinkya Rahane and Ashwin, who already has scored runs, a lot of runs. So we have a long batting lineup. It depends, like that's why I said कि 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे लंच टाइम निकल गया, फिर पता क्या होता है, then like England also start thinking what to do next. So they will be looking 2 hours some break कि 2-3 विकेट मिल जाएं तो उसमें they might come back in the match, but that's very difficult. But cricket is, पता ही है आपको, ये नेचर तो हम predict कुछ करते हैं, होता कुछ और है. So I think balanced prediction is better. Don't take anything for granted Yeah. because on your day anything can happen in cricket or anything can't happen also. in can't cricket. happen. Yeah, we've seen some few things now for the last 2-3 months. काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जब हम predict करते हैं, वो prediction किसी की भी गलत हो सकती है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हो गया ऑस्ट्रेलिया था। हुआ, फिर कम बैक होना, फिर हिस्टोरिक सीरीज जीतना, ये सब चीज़ें तो इसी के अंडर कंट्रोल में आ जाती है ना, कुछ भी हो सकता है. Absolutely. चलिए मदन जी, बहुत बहुत Thank you धन्यवाद very आपका. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. हम वापस आते हैं लंच ब्रेक पे. Okay, definitely. To continue talking about the match and how India has done in the first session of day 2's play. Irfan ji, thank you so much as well. And Jan, thank you for joining us this morning and taking us through all those updates. We'll slip into a very short break now. But on the other side, we'll have cricket gupshup. So don't go anywhere. Stay tuned to DD Sports. हजारों शब्दों की बयानी करती तस्वीरें, समय के वो लम्हे जिन्होंने गढ़ा इतिहास को, यात्राएं जो बन गए संबंधों के दस्तावेज, वो लम्हे जो सफलता की गाथा हैं, जो देश निर्माण की कहानी हैं, वो हैं गौरव के पल जिसने बदल दिया हमारे आज, हमारे कल को. प्रसार भारती का केंद्रीय अभिलेखागार लेकर आया है ऐतिहासिक पलों के रिकॉर्डिंगों का संग्रह.